Hey, hi guys, good morning everyone. Today I'm here with the journal, common journal interview questions. If you are going to abroad, if you are in abroad, some of these are the very important questions which is really important for your job. If you are applying for a job, if you are looking for a job, so these are the interviews questions that you can prepare yourself according to these questions, then definitely will get the job in Canada, Australia, America, or other overseas countries. So before starting this video, if you are new on this channel, then please do subscribe this channel. In today's video, I'll give you some of the ideas how to give your answers, and mainly the resume, how to prepare that, and the very little tip how to give your answer. So very in this question, I will in first question tell us about something from your resume. Here I'll also give you example, then how you speak if exam or if the interviewer asks you about yourself or your resume. So before starting this, if you are new on this channel, then please do subscribe this channel, because here you can get all your life skills questions and also your IELTS preparation questions and IELTS speaking questions, job interview questions, or some of the vocabularies, anything, whatever you want. And we have a WhatsApp group. If you want to join that group, then I will really appreciate that, because in that group you can also do your free speaking practice with our team and with me also. So if you want to do your free speaking practice, then definitely do subscribe this channel and also join that WhatsApp group. So now let's get started. Tell us about something from your resume. So how you will give the answer of this question. So first of all, I'll just give you a small tip for this one. So pick out your accomplishment that most clearly relates टू द जॉब. ओके, सो जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने रिज्यूमे में से उसके साथ रिलेटेड कीवर्ड्स जिसे हम बोलते हैं उसको पिक करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करना है, बनाना है. इफ़ यू आर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, विद ग्रीटिंग्स. जब भी आप इंटरव्यूअर के पास जाएंगे तो उसको आपने पहले कैसे बोलना है. सबसे पहले तो ग्रीटिंग हेलो, उसका नाम, अगर मैंने यहाँ पे एक प्रिटेंडिंग नेम लिया है मार्क, आप कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हो, जो भी आपका एग्जामिनर हो. सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देगा, सो उससे आपको पता चल जाएगा उसका नाम. एंड देन यू विल से आई ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई कैन फाइंड इंटरेस्टिंग. I never built a comfort zone around myself. I am constantly in a search of things that challenge me and help me to grow. So इस तरह से आपने, अगर आप फ्रेशर हो, स्टूडेंट वीज़ा पे गए हो, वहाँ पे जाके आप कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, वाइट कॉलर जॉब जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग जो है वो इस तरह से करेंगे, ऐसे अपना आंसर देंगे. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in there, if examiner ask you about, tell us about your background. So आपने अपना background कैसे बताना है. So tell a concise story with a beginning, middle and end that explains your current career and also status and why you are qualified, and clearly defines why you are the best candidate for this job. So ये भी एक बहुत अच्छी टिप है आपके लिए कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने करंट करियर स्टेटस के बारे में और जहाँ पे भी आप जा रहे हो उस जॉब के लिए आप क्वालिफाइड हो तो वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई किए हो तो वो भी आपको एक क्लियर आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए. सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर अगेन, देन मेक अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स. तो आपने उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको बताते हैं कि जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, एजुकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज. तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी क्वालिटीज़ को, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू हैव इट इन ऑर्डर टू डिलीवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन. तो आपने उसके हिसाब से अपनी जॉब की जो डिटेल्स, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उस जॉब के हिसाब से अपनी क्वालिटीज़ को और अपनी एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को स्टेप बाय स्टेप वन आफ्टर अनदर अरेंज करना है. एंड हाउ लाइकली यू आर टू फिट इन विद द कंपनी कल्चर, क्वालिफिकेशन, स्किल्स और कम्युनिकेशन वाइज. तो किस तरह से आप उस कंपनी के अंदर फिट बैठते हो जिस कंपनी में आप अपना जॉब अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन जो आपको
बहुत ही 100% आपसे पूछे ही जाएंगे और आपको इस तरह से अपने आंसर को रेडी करना है। अभी चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर अस। तो नेक्स्ट जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप जो है हमारी कंपनी के लिए या फिर वाई यू वॉन्ट टू वर्क फॉर अस, हमारे साथ काम, हमारे लिए काम क्यों करना चाहते हो। सो देन यू विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू पैशनेट ओके अबाउट द जॉब एंड कंपनी और डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू फिट इन टू द कंपनीज कल्चर। तो आपने उनको कंपनी कल्चर में आप किस तरह से फिट होते हो तो उनको आपने एक एग्जाम्पल में बताना है। सो टिप इज़ हियर इज़ ऑलवेज लुक एट द जॉब प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर बनाना आ जाएगा। ओके सो आपने उसके हिसाब से अपना जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अपने आप को आपने कैसे जो भी आपका प्रोफाइल है जॉब का या फिर जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने आंसर को रेडी रखिए। जैसे कि अगर आपने फाइनेंस में किया है या फिर अगर आपने किसी इंजीनियरिंग पोजीशन पे किया है या फिर आपने कहीं पे किया है लाइक कैश अकाउंटेंट या टाइप राइटर या डेटाबेस के अंदर, तो उसके हिसाब से आपको अपने प्रोफाइल से ये टिप है आपको पहले जॉब प्रोफाइल देखिए, जॉब जो निकलती है तो उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कभी भी कहीं पे थोड़ा बहुत भी काम किया हो उसके हिसाब से आप अपने प्रोफाइल को और अपने काम को और कंपनी को जब भी वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस, तो वहाँ पे आपने इस तरह का रिप्लाई जो है उनको देना है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है और लोगों को थोड़ा आंसर देने में थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है। जबकि आपसे पूछा जाए वाई शुड वी हायर यू, तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है यहाँ पे जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपने उनको बताना है कि क्यों आप उनको हायर करें। सो हियर योर कंसाइज elevator pitch which should touch on the skills and experience you have that you have a qualify for that role। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि जब आप किसी जॉब के लिए गए तो आपसे ज़रूर पूछेंगे एवरी जॉब एवरीवेयर, सो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे वाई शुड वी हायर यू, तो आपने बताना है बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, लाइक जो भी आप जिस भी प्रोफाइल के लिए जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो तो उसके साथ रिलेटेड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आप उनको बोल सकते हैं आई हैव एक्सपीरियंस, यू हैव नो नीड टू गिव मी मोर लाइक एक पर्टिकुलर जो है डेजिग्नेटेड ट्रेनर की, यू हैव नो नीड टू असाइन एनी डेजिग्नेटेड ट्रेनर फॉर मी फॉर दैट जॉब, सो आई एम because I already know the flow, I already know the process, I can do the work within 1 and 2, just understand the software what is company using, and after that I will ready to give you my work और deliver you my work output और जो भी आपका वहाँ पे रोल है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आपने उनको बताना है लाइक यू हैव टू टेल देम लाइक यू आर ऑलरेडी नो एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स which you are applying, which position you are applying for, so this makes your job little bit less like easier बिकॉज आप अपनी क्वालिटीज़ को खुद बताएंगे। आप उनके साथ जैसे होता है ना कि मार्केट में जाके हम क्या करते हैं किसी चीज़ के लिए, इंडिया के अंदर नॉर्मली हम बार्गिन करते हैं कि ये 10 रुपये की जगह 5 रुपये का दो, तो जो मार्केट में जो देने वाला भैया है वो भी बोलेगा अरे नहीं नहीं देखिए फ्रेश फ्रेश है, अभी अभी तोड़ के लेके आए हैं, वहाँ से यहाँ तक लेके आने का पेट्रोल है, तो अपनी चीज़ को देने के लिए वो आपको उसकी वैल्यू बताते हैं कि उसने कितना सारा एफर्ट्स किया है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप अपने आप को, इट मीन्स यू आर सेलिंग योर सेल्फ, आप किसी जॉब को अच्छी जॉब को लेने के लिए जब जा रहे हो देन यू आर टेलिंग देम योर क्वालिटीज़, व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ एंड बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटीज़ यू नीड टू बी हायर मी ओके फॉर दैट पोस्ट। सो दैट पोजीशन के लिए जो भी आप पोजीशन के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपको अपनी क्वालिटीज़ उनको बतानी है कि मुझे ये पहले से ही इतना कुछ पता है तो आप मुझे हायर करें। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, कहाँ से पता चलेंगी, किस तरह से पता चलेगी। सो यू शुड फर्स्ट थिंक फर्स्ट, जब भी कोई पोजीशन पोस्ट निकलती है या निकली हुई है, जब भी आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले उस पोजीशन को, उस पोस्ट को, उसकी रिक्वायरमेंट को बहुत ही ध्यान से, उसी रिक्वायरमेंट के अंदर कीवर्ड्स रहते हैं। और यहाँ यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी आपको कॉल आता है तो अगर आपके कीवर्ड्स आपके जो आपने रिज्यूमे के अंदर रखे होते हैं तो उसके साथ अगर मैच होते हैं तो डेफिनेटली वो आपको कॉल करेंगे, उस कॉल के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू भी लेंगे। सो एक यहाँ पे क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, तो टेल अस अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड एट वर्क एंड हाउ यू dealt with that। So
यहाँ पे क्या है कि आपने कितने सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अपनी जॉब के अंदर. सो दिस इज़ अगेन ए बिहेवियरल क्वेश्चन. सो इसके अंदर क्या है, आपसे वो एनालाइज करते हैं कंपनी वाले कि आपको कितना प्रॉब्लम सॉल्व, अगर आपके कुलीग के साथ, टीम के साथ, या फिर कुछ काम में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, तो आपने उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया. और टीम के अंदर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो कन्फ्यूजन को कैसे आपने उसको ठीक किया. लीडरशिप स्किल्स आपने यहाँ पे अपनी बतानी है. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर जो कि यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है. सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकते हैं, दैट इज़ आपसे जो यहाँ पे पूछते हैं मेनली, तो वो है वाई आर यू द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब. तो यहाँ पे भी सेम लाइक दैट प्रीवियसली जैसे मैंने बताया था कि आपने अपने आप को वहाँ पे अपनी क्वालिटीज़ को सेल करना है, बताना है कि दीज आर फोकस योर पास्ट सक्सेस एंड मोर रेलिवेंट टू दैट जॉब, जो भी जॉब के लिए आप जा रहे हो. अगर आप फ्रेशर हो तो उनको जस्ट अपनी आप जो पास्ट में जितनी भी सक्सेस थी आपकी स्टोरीज, तो उनको आप बताएंगे कि हाँ, बिकॉज ऑफ this I did this project, that project I got got recognition for that and I got prize for that. और जो भी आपको मेडल्स जो भी आपने लिए हैं, हाई पॉइंट्स लिए हैं, या कुछ क्रेडिट्स आपको ज़्यादा मिले हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके. इसके बाद नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर आपसे क्या पूछते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं इसमें कि आपने जो भी स्टोरीज़ जो भी आपने अपना इंटरव्यू के अंदर बताया है वो कितना वैल्यूएबल है. आप कितना अपने आप को बोलते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में ये चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़ है, लेकिन उस क्वालिटीज़ के बेस के ऊपर आपने अचीव क्या किया है. तो इस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर आपने कोई तो अपनी शॉर्ट स्टोरी बता देनी है. कई बार तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो, कई बार ये रियल भी होती है. अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें से आपका ओवरकम जो है, उससे चैलेंजेस अगर उस जॉब के अंदर आए थे, उस अचीवमेंट के अंदर आए थे, तो उससे आप कैसे आपने अकॉम्प्लिश किया, कैसे आप दिक्कतों से बाहर आए, और फिर उसके बाद जो है इम्पैक्ट इट मेड एंड व्हाट यू लर्न इन दैट प्रोसेस. तो आपने उस प्रोसेस के बारे में, उसकी लर्निंग के बारे में, उस ग्रेट अचीवमेंट के बारे में बताना है. सपोज अगर आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ like in my previous job or in my 9 or 10 year experience, I had a problem. When I joined the job, I had a team of 64 teachers, and then they were like all the teachers, most of the teachers, like 8 to 9 teachers, were close to the retirement age. They were not ready to understand the new process, they were not ready to learn the new process. So in that case, when I was start giving them a training, and they were having their own issues, problems, they were not ready to learn, and that makes the problem for the other team also. Because if one person is not ready to learn the process, then other like 59 people, they were always troubled, right? And if they make the unity of 1 or 9 people, then it will be the trouble for other 40 or 50 peoples, right? So this was the problem. And then what action you took that time. So I took the action. I first of all, like, do not take the action on your own. Always, whatever action you will take, you always let your management know what's going on and what do you want to do. So आपने क्या करना है कि इसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने मैनेजमेंट को बताया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ द प्रॉब्लम. एंड देन मैनेजमेंट आस्क मी, ओके, डू यू वांट आवर हेल्प, वी कैन हेल्प यू आउट, वी कैन कॉल द staff meeting and let the people know that so that they can make less trouble. So I said, no, I can deal with myself. So I will so this was the here is the main key of the success. So I start doing what strategy I used that time. I start working with one by one, like me and the people who had the problem. And then before starting that 101, I just made one small PPT, practically approach, right? हमेशा हम क्या बोलते हैं कि जब हम बातों से किसी को चीज़ हम कोई समझाते हैं तो उसको शायद कम समझ में आए, लेकिन जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली हम समझाते हैं, लाइक विद द कंप्यूटर प्रेजेंटेशन और समथिंग लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो उससे उनको चीज़ें ज़रा जल्दी समझ में आती है. सो दिस इज़ हाउ आई डिड दैट. आई मेड वन स्मॉल PPT presentation. So I told them, I showed them, like, if you will use this thing, then you can get this successful result. And then
सो जब एक एक करके एक एक टीचर को एक एक बंदे को समझाया गया, सो आफ्टर दैट व्हेन दे ऑल आर understand, then I start giving them a training and classes. So this is how I collaborate, I make the team. Okay, so ऐसे ही आपने अपनी किसी एक अचीवमेंट को जो कि आपके पास में हुई हो, आपने उसको एक साथ करना है और उसके बाद जो है आपने उसके रिज़ल्ट को बताना है. सो दिस इज़ हाउ आपने अपनी इस क्वेश्चन का जवाब रेडी करना है. एंड व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस. अभी ये क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर यहाँ पे पूछा जाता है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं. तो आपने क्या इसके अंदर देना है. आइडेंटिफाई समथिंग जॉब रिलेटेड दैट यू हैव स्ट्रगल्ड विद बट विच यू हैव वर्क टू इम्प्रूव इट. सो आपने कुछ ऐसा जो भी आप जॉब में हो या जो भी आप, अगर आप फ्रेशर हो तो अपनी वीकनेस जो है वो आप बता सकते हो कि जैसे मैं वर्कहॉलिक हूँ, मैं बहुत सारा काम करता हूँ तो मुझे एक ब्रेक लेनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डिसाइडेड किया है. मुझे हर जैसे 5 और 4 और 5 घंटे के बाद एक ब्रेक लेनी चाहिए, बट मैं जो कि नहीं लेता हूँ. और आई एम नॉट ड्रिंकिंग मोर वाटर, जो कि बहुत ज़रूरी है जब मैं काम करता हूँ. सो आई ऑलवेज बिजी इन माई वर्क, सो दैट्स हाउ आई ऑलवेज फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर. सो इस तरह की चीज़ों को ले लो ताकि आपको इसमें कुछ ऐसा ना हो, ठीक है, कि प्रॉब्लम ना आए देने के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनर ऑलवेज यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो आपसे ज़रूर पूछता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस. सो इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू मोर. कि अगर आप कई बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इमोशनल हूँ, सो डू नॉट गिव दैम दिस टाइप ऑफ आंसर बिकॉज इमोशनल मीन्स यू कैन नेवर वर्क विद द टीम. अगर किसी ने कुछ बोल दिया आप तो दिल पे लेके बैठ जाओगे फिर उस बात को. तो इसीलिए फिर वो इस तरह के लोगों से थोड़ा डिसीजन लेने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है. सो नेवर गिव दैट टाइप ऑफ आंसर कि आई एम वेरी इमोशनल और या फिर आई एम वेरी स्टबर्न. अगर मैं कुछ सोच लेता हूँ तो मैं करके ही ख़त्म करके ही उठता हूँ. सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सोचने पे मजबूर करते हैं कि आपको काम पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए अगर आप किसी अच्छी वाइट कॉलर जॉब में जा रहे हैं तो. सो नाउ लास्ट ये क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट द टाइम यू मेड अ मिस्टेक. सो यहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि आपने कभी भी जब भी कोई आप एग्जाम्पल यहाँ पे दोगे, यू डू प्लीज़ डू नॉट हाइड योर मिस्टेक. ओके, यहाँ पे जब काम भी करते हो तो दीज इन आउट जो अब्रॉड में जितनी भी कंट्रीज़ है, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में आप हो, तो यहाँ पे दे वर्क्स विद लॉयल्टी. लाइक इन इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसे हमें छुट्टी चाहिए, हम छुट्टी आज भी ले रहे हैं. हमें अगर साल की 5 छुट्टियाँ मिलती हैं या 8 छुट्टियाँ मिलती हैं, तो अगर हम 8 छुट्टियों से अगर हम यहाँ पे हैं तो 8 मीन्स 8, यहाँ पे कोई आपकी छुट्टियों को ट्रैक नहीं कर रहा. ठीक है. तो लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर है तो 8 के बाद 9 भी ले लेते हो, 10 भी ले लेते हो, वहाँ पे आपका ट्रैक सिस्टम रहता है और आपकी पे कटनी शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है, लोग एक लॉयल्टी जो है ना सच्चाई के ऊपर चलते हैं. आपने अपनी छुट्टियों का ट्रैक खुद ही रखना होता है कि अगर मेरे को साल में 20 छुट्टियाँ मिलती हैं तो मैंने उसको कब लेना है, और 20 ही लेनी है, 20 से ज़्यादा नहीं लेनी, 20 से कम नहीं लेनी. सो इस तरह से आपने अपने आप को, तो यहाँ पे क्या करना है, एक्नॉलेज योर पार्ट इन द मिस्टेक एंड अवॉइड ब्लेमिंग अदर्स. तो यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज़ आपने कोई, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसमें क्या हुआ कि कुछ जो है उसमें जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लिंक्स रहते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स रहते हैं जो कि क्लिक करो तो बैक एंड जो विंडोज़ ओपन हो जाती हैं या कुछ. तो एक्सप्लेन हाउ यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे आपने बताना है कि ठीक है, ये आपकी गलती थी कि आपने वो लिंक्स वहाँ पे लगाए जो कि वहाँ पे नहीं लगने चाहिए थे. उससे जो है वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है वो जो है बिल्कुल ही जो मिसलीड हो गया, उससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था किस चीज़ के लिए है. सो इस तरह से आपने, यू जस्ट लेट देम नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, लाइक एनालाइज योर प्रॉब्लम. ओके, फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस में से कुछ ऐसी मिस्टेक जो आपकी हुई हो जिससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ लर्निंग मिली हो, तो उस चीज़ को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. टेल अस अबाउट द टाइम यू मेड अ मिस्टेक एंड यू व्हाट द आउटपुट ऑफ दैट वन एंड what did you learn from that mistake. Okay, so this is all how you can give your interview question answers here when you are applying in America or in Canada or in Australia or any other country. So this is how you can give your answers. Okay, so if you are new on this channel, then please do subscribe this channel. And also if you want to do your practice, IELTS speaking practice or job related question answers interview practice, then definitely
subscribe our channel and also share this video with your friends, and also join our WhatsApp group, and then you can be the part of our IELTS Wisdom family. So now see you in the next video. Thank you very much for watching this video. See you. Bye bye.